Hello everyone, we are team of Monica's Nursing Academy. This is first nursing coaching institute in Himachal. We provide coaching to plus 2 passed out student to get admission in Government Nursing Institute. We also provide coaching to staff nurses student to get admission in Government Institute for higher studies and also for various government nursing hospital either at state level or at center level. Our fee structure is very reasonable. You can contact us on 8219033032 and you can also visit our academy. Our address is Thakur Complex behind IDBI Bank near DC office, Hamirpur, Himachal Pradesh. So today we will discuss gastrointestinal or you can say digestive system anatomy and physiology. So digestive system को हम GI tract भी बोलते हैं. It is also terms to be as a gastrointestinal tract. तो हमारे पूरा का पूरा जो हमारा digestive system होता है वो पूरी की पूरी basically एक elementary canal है. अब elementary canal में कौन कौन से organ होते हैं? Mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. आज के हम वीडियो में पूरे के पूरा elementary tract को discuss करेंगे. And in next video we will discuss regarding the digestive gland. So firstly, we are having first part of an alimentary canal that is mouth and buccal cavity. जो total length होती है हमारे alimentary canal की that is 9 meter. Mouth used to receive the food that is termed to as a ingestion. उसको ingestion बोला जाता है. हमारे buccal cavity में क्या क्या चीजें include होती हैं? It consists of palate, teeth, muscular tongue and palate के भी further दो part होते हैं, एक anterior और एक posterior. Anterior मतलब आगे वाला, posterior मतलब पीछे वाला. So anterior portion is termed to be as a hard palate and posterior मतलब पीछे वाला जो कि uvula portion है वहां पे हमारे पास present होता है soft palate. जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो hard and soft palate. Next is the tongue portion which is a muscular organ जो कि attach होता है हमारे oral cavity के साथ. किसके थ्रू attach होता है? That is by the frenulum. Next one is we are having the tongue which is having a small projection जिसको papilla बोला जाता है और इन्हीं papillas में हमारे पास taste buds present होते हैं. And at the back on the both side of the tongue we are having the tonsils. Here you can see the image. We are having the tonsil as well. Next one is nature and mode of arrangement of teeth is called as dentition. मतलब किस तरीके से हमारे दांतों का arrangement है उसको बोला जाता है dentition. उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है हेटेरोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफोडोंट. सबसे पहले हमारे पास आता है हेटेरोडोंट डेंटिशन मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं. अब वो कौन कौन से होते हैं? वी आर हैविंग इंसीजर, वी आर हैविंग कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इंसीजर किस में हेल्प करता है? कटिंग में हेल्प करते हैं. कैनाइन किस में हेल्प करते हैं? टेयरिंग में हेल्प करते हैं. प्रीमोलर एंड मोलर किस में हेल्प करते हैं? चबाने में, प्रॉपर तरीके से चबाने, जिसको कहते हैं मास्टिकेशन. तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो किसमें होती है? प्रीमोलर एंड मोलर. और प्रीमोलर एंड मोलर को कलेक्टिवली बोला जाता है चीक टीथ. नेक्स्ट वन इज थिकोडोंट डेंटिशन मतलब हमारे सारे के सारे जो टीथ हैं वो कहां पे प्लेस होते हैं? जॉ सॉकेट में. सो दैट्स व्हाई देयर टर्म्स टू बी एज अ थिकोडोंट डेंटिशन. नेक्स्ट वन इज डाइफोडोंट डेंटिशन. डाइफोडोंट मतलब हमारे जो टीथ होते हैं वो पूरे लाइफ टाइम में दो बार अपीयर होते हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ को डेसिडुअल टीथ भी बोला जाता है. इनका जो नंबर होता है दैट इज 20. कब ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं? एट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ. कब ये रिप्लेस हो जाते हैं? कब ये जो पूरे के पूरे रिप्लेस हो जाएंगे बाय द परमानेंट टीथ? एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर. और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका नंबर होता है अप्रोक्सीमेट दैट इज 32 इन नंबर. नेक्स्ट वन जो हमारे लास्ट 4 मोलर होते हैं वो किस टाइम पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं? एट द एज ऑफ 18. दैट्स व्हाई देयर टर्म्स टू बी एज अ विजडम टीथ. एंड द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ जो हार्ड कवरिंग होती है हमारे टीथ के ऊपर दैट इज टर्म्ड टू एज इनेमल. अगर ये इनेमल इरोड हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला में से क्वेश्चन आता है कि मिल्क डेंटिशन का क्या फॉर्मूला होता है, परमानेंट टीथ का क्या फॉर्मूला होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. अगर हम बात करें परमानेंट टीथ की तो इट्स फॉर्मूला इज 2123 अपॉन 2123 इंटू 2. इंसीजर हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ एंड राइट एंड लेफ्ट की तरफ. दैट्स वाई इसको मल्टीप्लाई किया गया है बाय 2 क्योंकि हमारे राइट साइड में भी होते हैं दांत, लेफ्ट साइड में भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं. सो दैट्स वाई इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2. सो वी आर हैविंग
2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32. परमानेंट टीथ होते हैं टोटल 32. नेक्स्ट वन इज मिल्क डेंटिशन, दूध के दांत. उनका फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 टोटल 20. आई से क्या डिनोट हो रहा है? इंसीजर. सी से कैनाइन. पीएम से प्रीमोलर एंड एम से मोलर. सेम फॉर परमानेंट टीथ एंड सेम फॉर मिल्क डेंटिशन. So next one is pharynx. जो हमारा pharynx पोर्शन है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेजो, ओरो एंड हाइपोफेरिंक्स, which is a common passage for the digestive as well as for the respiratory system. अब कौन सा ऐसा पोर्शन हमारे pharynx का जो कि रेस्पिरेटरी भी काम करता है प्लस डाइजेस्टिव भी? So those are oropharynx and hypopharynx. और जो नेजोफेरिंक्स है वो कंप्लीटली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर अप होता है. नेक्स्ट, जब हम खाना खाते हैं, so the when you will ingest the food and the food material pass through the pharynx, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि क्लोज कर देता है किसको? लैरिंग्स की ओपनिंग को, ताकि खाना जो है वो लैरिंग्स में ना जाए. वो कहाँ जाए? दैट इज टू द इसोफेगस. सो उसका नाम है, दैट इज टर्म टू बी एज एपिग्लॉटिस. सो एपिग्लॉटिस जो है दैट यूज टू कवर द ग्लॉटिस पोर्शन विच इज बेसिकली ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारे ट्रैकिया में ना जाके कहाँ पे जाए? दैट इज टू द इसोफेगस. नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन आता है इसोफेगस विच इज टर्म टू बी एज अ फूड पाइप. इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, जिसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर. और अगर हम इंचेस में बात करें सो इट इज 10 इंचेस. ये क्या करती है? इट यूज टू कैरी द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक. ये खाना लेके आती है फेरिंग से स्टमक पोर्शन तक. अब जो हमारा इसोफेगस है विच इज टर्म टू बी एज अ फूड पाइप, उसका नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्टमक. जैसे आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो. अब ये जो फूड जा रहा है ये किस मूवमेंट के थ्रू जा रहा है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जाता है. ठीक है, दिस इज अ पेरिस्टाल्सिस. यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, जो खाना जो है हमारे इसोफेगस से स्टमक में आ रहा है, दैट इज बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. पेरिस्टाल्सिस का मतलब है मस्कुलर मूवमेंट होती है ताकि खाना इसोफेगस से स्टमक में जा सके. अब जो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में? इसोफेगस और स्टमक के बीच में. उसको बोला जाता है कार्डिक स्फिंक्टर and it is also known to be as a gastroesophageal sphincter, जो किसमें हेल्प करता है? ताकि खाना जब इसोफेगस से स्टमक में चला जाए तो उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए. So this is the main function of this particular sphincter. Next one is stomach portion. स्टमक का जो शेप होता है that is J shape. इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अपर पार्ट that is fundus, मिडल कार्डिक स्टमक and lower part that is termed to be as a pyloric stomach. एंड द पाइलोरिक स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारा जो स्टमक के बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन शुरू होने वाला है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. अब उन दोनों के बीच में स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. उसका फंक्शन भी वही है जो हमने एलईएस में पढ़ा था लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में, कि बैक फ्लो नहीं होना चाहिए. सो उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर. इनर वॉल ऑफ द स्टमक बियर द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड. अब हमारे स्टमक में जो है वो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है रगे. अब जब भी हम खाना खाते हैं, जब हमारे स्टमक में जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो बढ़ना भी चाहिए. सो दैट्स व्हाई फॉर accommodating the food we are having the rugged portion. And here you can see the image of the stomach. नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन आता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट. अगर हम पूरे के पूरे गट की बात करें सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट. इसकी जो लेंथ रहती है अप्रोक्सीमेट 7 मीटर एंड डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर. इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम. सबसे पहला पार्ट आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम विच इज सी शेप एंड इट्स लेंथ इज 25 to 30 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट इज ज्यूजेनम. ज्यूजेनम रहता है 2.4 मीटर लॉन्ग. एंड नेक्स्ट वन इज द इलियम. इलियम की लेंथ रहती है दैट इज 3.7 मीटर लॉन्ग. ये वो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जहां से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है. नेक्स्ट वन इज हियर यू कैन सी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है. जो मीन्स हमारे विटामिन मिनरल जो भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा कहां से एब्जॉर्ब होते हैं? दैट इज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दैट्स व्हाई we are having the villi portion which are a finger like projection in the small intestine, ताकि मैक्सिमम चीजें जो है वो यहां से एब्जॉर्ब हो सके. नेक्स्ट पोर्शन इज
लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस पोर्शन, तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग एंड इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिकम, कॉलन एंड रेक्टम। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास सिकम। अगर हम बात करें सिकम की तो ये वेल डेवलप होता है किन केसेस में, इन केस ऑफ हर्बीवोर। हर्बीवोर एनिमल्स में एग्जांपल आता है जैसे काऊ हो गया, गोट है, डियर है, हॉर्स, टॉर्टॉइस, पांडा, एलिफेंट। इन सारों में क्या होता है, जो सिकम पोर्शन होता है वो काफी वेल डेवलप होता है, जबकि ह्यूमन में छोटा होता है। अराइजिंग फ्रॉम द सिकम इज अ फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन दैट इज टर्म्ड टू बी एज अपेंडिक्स। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, सबसे पहले मेंशन किया है सिकम, उसके साथ में आप देख रहे हो एक छोटा सा फिंगर लाइक ऑर्गन है, सो दिस इज टर्म्ड टू बी एज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट वन इज कॉलन पोर्शन। कॉलन पोर्शन को फर्दर डिवाइड किया गया है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड द डिसेंडिंग कॉलन। एंड लास्ट वन इज रेक्टम पोर्शन। pelvic organ leads to the rectum portion that further open out by the anus। और जो एनस की जो ओपनिंग है वो जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है that is termed to be as anal sphincter। Next one is in some herbivore large intestine consists of cellulose digesting bacteria। अगर हम herbivores की बात करें जो कि घास खाते हैं जैसे काऊ है, गोट है, डियर है, सो उस केसेस में उनके लार्ज इंटेस्टाइन में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब वो घास खाएंगे उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होगा, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, so that's why cellulose digestive bacteria has been present in some of the herbivores। Next one is transverse section of human gut showing the 4 layer of the alimentary canal। ये हमारे alimentary canal की 4 लेयर के बारे में बताया हुआ है स्लाइड में। सबसे पहले हमारे पास है म्यूकोजा जो कि सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, and that is a moist epithelial layer and it used to contain the secretory and the absorptive cell। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सबम्यूकोजा which is a soft connective tissue layer just outside the mucosa and it used to contain the nerves and blood vessels। Next one is muscularis layer which is outer to submucosa which is a smooth muscle layer, and last one is serosa which is the outermost fibrous layer। So these all are 4 layer from inner to outer। First one is mucosa which is the innermost layer, then submucosa, then muscularis and last one is serosa। ये सारी की सारी जो लेयर है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लेयर है। That's all about this topic, and rest regarding the digestive gland we will discuss on our next video। Thank you very much।